بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، عملی تنقید کے اچھے نمونے کس نقاد نے پیش کیے ہیں؟ آل احمد سرور، احتشام حسین، مولانا حالی یا پھر محمد حسین آزاد؟ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں آل احمد سرور کے بارے میں۔ آل احمد سرور کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1911 عیسوی کو بدایوں میں، اور وفات جو ہے 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ٹھیک ہے، احتشام حسین کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پتی میں ہوئی ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر یہ سوال جو ہے اس طرح کے پیٹرن پہ آتا ہے۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی۔ ٹھیک ہے، پہلے علی گڑھ تحریک، اس کے بعد رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، اور آخر میں حلقہ ارباب ذوق کی تحریک۔ اوورآل تحریکات کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمارا اردو میں ایہام گوئی کا تحریک آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اردو میں ایہام گوئی کا تحریک آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر اردو میں ایہام گوئی کے تحریک کے بعد دوسرے نمبر پر اردو میں اصلاح زبان کی تحریک آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اردو میں ایہام گوئی، اور اس کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک۔ ٹھیک ہے، اور اردو میں اصلاح زبان کی تحریک کے بعد ہمارا آتا ہے علی گڑھ تحریک تیسرے نمبر پر۔ اسے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ ایک سوال جو ہے آپ کا یہاں سے صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہمارا علی گڑھ تحریک آتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اردو ادب میں رومانوی تحریک۔ ٹھیک ہے، علی گڑھ تحریک کے جسٹ بعد اردو ادب میں رومانوی تحریک آتا ہے۔ پہلے میں کیا آتا تھا؟ اردو میں ایہام گوئی، اور اس کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، تیسرے نمبر میں علی گڑھ تحریک، اور چوتھے نمبر پر ہمارا اردو میں رومانوی تحریک۔ ٹھیک ہے، اور پانچویں نمبر پر آتا ہے ترقی پسند تحریک۔ ٹھیک ہے، پانچویں نمبر پر ترقی پسند تحریک آتا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تو اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق آتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے بعد دو تحریک ہے۔ اس کے حلقہ ارباب ذوق کے بعد دو تحریک کا نام ہے جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ تو جدیدیت کا پہلے نمبر آتا ہے 7ویں نمبر پر۔ ٹھیک ہے، جدیدیت جو ہے پہلے آتا ہے، اس کے بعد مابعد جدیدیت آتا ہے۔ مابعد جدیدیت جو ہے یہ آخری تحریک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے 8 تحریکات ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پہلے اردو میں ایہام گوئی، دوسرے میں اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، اس کے بعد علی گڑھ تحریک، پھر اردو ادب میں رومانوی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، پھر حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، دہلی کالج سے کون سا مصنف وابستہ تھا؟ میر امن، غالب، ماسٹر رام چندر یا پھر تحسین؟ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ماسٹر رام چندر۔ دہلی کالج سے جو ہے ماسٹر رام چندر کی وابستگی تھی۔ یہ دہلی کالج کے پہلے طالب علم تھے، اور اس کے بعد سے اس میں ٹیچر کی حیثیت سے جانے لگے۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، پہلے غزل، اس کے بعد داستان، پھر ناول، اور پھر اس کے بعد انشائیہ۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، اس کا صحیح مصرعہ کیا ہوگا؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 5 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا
डी, ठीक है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। ये किनका शेर है, तो याद रखिएगा मीर तकी मीर का, ठीक है। मीर तकी मीर का ये शेर है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तंजिया मज़ाहिया नस्र थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर कौन हुए, रशीद, रतन नाथ सरशार, पतरस बुखारी या फिर शौकत थानवी। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब आ जाएगा पतरस बुखारी। तंजिया मज़ाहिया नस्र यानी इंशाइया थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर पतरस बुखारी हुए हैं। पतरस बुखारी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1898 ईस्वी को हुई है। याद रखिएगा 1898 ईस्वी की पतरस बुखारी की पैदाइश है। कहाँ है, तो पेशावर में। और वफ़ात कब हुई है, तो 1958 ईस्वी को, ठीक है। 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में पतरस बुखारी की वफ़ात हुई है। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1846 ईस्वी को हुई है। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा लखनऊ में, ठीक है। और वफ़ात कब हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी को हैदराबाद में। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को जौनपुर में हुई है और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला फ़लसफ़ी कौन है, अरस्तु, अफलातून, सुक़रात या फिर फैसागोरस। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा अफलातून। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला पहला फ़लसफ़ी अफलातून है। शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला अफलातून है। शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला कौन है, तो अफलातून है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म जदीद के फ़रोग़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के शरीक कार कौन थे, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी या फिर अल्लामा शिबली नोमानी। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नज़्म जदीद के फ़रोग़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। याद रखिएगा नज़्म जदीद के फ़रोग़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के शरीक कार कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील इनमें से किसने की, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मौलाना अब्दुल हई या फिर मौलवी ज़काउल्लाह। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरतुन नबी को जो है सैयद सुलेमान नदवी ने जो है तकमील किया था। सीरतुन नबी जो है इसकी पहली जिल्द जो है 1910 ईस्वी है, ठीक है। और सीरतुन नबी की जो है कुल 6 जिल्दें हैं, ठीक है। पहली जिल्द की जो है शिबली ने मुकम्मल की थी, उसके बाद जो है शिबली का जो है इंतकाल हो गया और फिर जो है सैयद सुलेमान नदवी ने जो है शिबली की फरमाइश पर ही जो है सीरतुन नबी की जो है तकमील की थी, मुकम्मल किया था। कितने जिल्दों में, तो याद रखिएगा 6 जिल्दों में, ठीक है। शिबली नोमानी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1857 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात कब हुई है, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी को आज़मगढ़ ही में हुई है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि अल्लामा शिबली नोमानी ने दारुल मुसन्निफ़ीन जो है कब कायम किया था, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी को, ठीक है। दारुल मुसन्निफ़ीन जो है 1914 ईस्वी को जो है इन्होंने कायम किया था। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अल्लामा शिबली नोमानी को जो है शमसुल उलमा का ख़िताब कब मिला था, तो याद रखिएगा 1894 ईस्वी को, ठीक है। 1894 ईस्वी को शिबली नोमानी को शमसुल उलमा का ख़िताब मिला था। चलिए ये बताइए कि शिबली नोमानी का दाखिल नसाब सफ़रनामा रोम मिस्र शाम पहली बार कब शाया हुआ था। जी दोस्तों, तो याद रखिएगा पहली बार 1894 ईस्वी में ही शाया हुआ था। शिबली को शमसुल उलमा का ख़िताब भी 1894 ईस्वी में मिला है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, काशिफुल हक़ाइक़ का मौजू क्या है, तारीख़, दास्तान, तनक़ीद या फिर शायरी। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तनक़ीद। काशिफुल हक़ाइक़ का मौजू क्या है, तो याद रखिएगा तनक़ीद है। इसके तख्लीक़ कार कौन है, तो याद रखिएगा सैयद इमदाद इमाम असर। सैयद इमदाद इमाम असर हैं, ठीक है। सैयद इमदाद इमाम असर इसके तख्लीक़ कार हैं।
बात कर लेते हैं सैयद इमदाद इमाम असर के बारे में। तो इमदाद इमाम असर की पैदाइश जो है 1849 ईस्वी को पटना में हुई है, और वफ़ात कब हुई है तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी को पटना ही में हुई है। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि काशिफुल हक़ाइक़ जो है ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है। जी तो याद रखिएगा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इमदाद इमाम असर ने जो है 1897 ईस्वी में जो है मुकम्मल किया था काशिफुल हक़ाइक़ को। ठीक है, और काशिफुल हक़ाइक़ को मअरूफ़ ब बिहार सुखन भी कहा जाता है। चलिए एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि इमदाद इमाम असर का नावल का क्या नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जी तो याद रखिएगा फसाना हिम्मत। ठीक है, फसाना हिम्मत जो है इमदाद इमाम असर का ये नावल है। ठीक है, चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए कि इमदाद इमाम असर का मज़हबी किताब कौन सा है। उन्होंने जो है बहुत सारी जो है किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक मज़हबी किताब था। जी तो उसका नाम है फ़वाइद दायरैन। ठीक है, फ़वाइद दायरैन जो है ये एक मज़हबी किताब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ़ कौन है। इनमें से हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ़ कौन है। डॉक्टर मसूद हसन ख़ान, सोहेल बुखारी, शौकत सब्ज़वारी या फिर मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर। ये दोस्तों तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ हैं मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर। मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर के बारे में बात करें तो मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को हुई है। ठीक है, 1905 ईस्वी को कहाँ हुई है तो हैदराबाद में, और वफ़ात इनकी कब हुई है तो 1962 ईस्वी को कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा 1905 ईस्वी को हैदराबाद में मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर की पैदाइश हुई है, और वफ़ात जो है 1962 ईस्वी को हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से श्रीनगर कश्मीर में हुई है। ठीक है, मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर के हवाले से अहम किताब का नाम याद रखिएगा हिंदुस्तानी सोतियात उर्दू शहपारे। ठीक है, और हिंदुस्तानी लिसानियात तो है ही। ठीक है, इसके अलावा जो है रूह तनक़ीद, ये भी इनका एक अहम तख्लीक़ है। इसके अलावा तनक़ीदी मक़ालात। ठीक है, तनक़ीदी मक़ालात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तनक़ीदी मक़ालात भी पूछा जाता है। रूह तनक़ीद, हिंदुस्तानी सोतियात, हिंदुस्तानी लिसानियात। ठीक है, ये सभी जो है इनकी किताब अहम हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है इस्लाह ज़बान के लिए कौन शायर मशहूर हुए। दर्द, आतिश, नासिख या फिर मुसहफ़ी। जी तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा शेख इमाम बख्श नासिख। इस्लाह ज़बान के लिए जो है इमाम बख्श नासिख जो हैं वो बहुत मशहूर हुए हैं। इनके बारे में बात करें तो याद रखिएगा नासिख की पैदाइश 1772 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है, और वफ़ात 1838 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है, ये लखनवी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 है रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ किस मकसद से शाया हुआ था। तसानीफ़ की इशाअत के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए, कौम को ख्वाब गरां से बेदार करने के लिए, या फिर कॉलेज की ख़बरों की तशहीर के लिए। जी तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा सी, कौम को ख्वाब गरां से बेदार करने के लिए। रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ का मकसद क्या था तो याद रखिएगा कौम को ख्वाब गरां से बेदार करने के लिए। ठीक है, इसे किसने निकाला था तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं। हुस्न मतला, हुस्न बयान, बैत या फिर बंदे। जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा बैत। ठीक है, मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को बैत कहा जाता है। याद रखिएगा मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को बैत कहा जाता है। ठीक है, मुसद्दस के हर बंद में जो है 6 मिसरे होते हैं। याद रखिएगा मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को बैत कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की। मीर अनीस, फ़ानी बदायूनी, हाली या फिर जोश मलिहा बादी। ये साथियों तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा जोश मलिहा बादी। तहरीक आज़ादी के हवाले से जोश मलिहा बादी ने जो है शायरी की है। याद रखिएगा तहरीक आज़ादी के हवाले से जोश मलिहा बादी ने शायरी की है। जोश मलिहाबादी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है मलिहाबाद में, और वफ़ात 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद में। ठीक है, मीर अनीस के बारे में बात करें तो मीर अनीस की पैदाइश जो है
1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात 1874 ईस्वी को लखनऊ में। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश 1879 ईस्वी को बदायूं में हुई है और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा मजमुआ कलाम जोश मलिहा आबादी का नहीं है? समूम सबा, शोला तूर, शोला शबनम या फिर सैबो सबू? जी तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा शोला, एक सेकंड, हाँ, शोलाए तूर। ठीक है, शोलाए तूर किनका शेरी मजमुआ है? तो याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी का। शोलाए तूर किनका शेरी मजमुआ है? तो याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी का। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 1890 ईस्वी को जिगर मुरादाबादी की पैदाइश जो है गोंडा मुरादाबाद में हुई है। याद रखिएगा 1890 ईस्वी को जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई है और वफ़ात 1960 ईस्वी को गोंडा में हुई है। ठीक है, शोला तूर इनका जो है बहुत ही मशहूर शेरी मजमुआ है। इसके अलावा समूम सबू, शोला शबनम और सैफ़ो सबू, ये तीनों जो है मजमुआ कलाम जो है जोश मलिहा आबादी का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बैक किस किताब का किरदार है? तौबतुन्नसूह, इब्नुल वक्त, उमराउ जनादा या फिर फसाना आज़ाद? जी तो सवाल नंबर 17 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तौबतुन्नसूह। तौबतुन्नसूह किनका नाविल है? तो याद रखिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद का। ठीक है, और इनके नाविल जो है तौबतुन्नसूह का ये किरदार है मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बैक। ठीक है, 1874 ईस्वी में जो है ये मंजर आम पर आया था तौबतुन्नसूह। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि तौबतुन्नसूह जो है कितने फ़सलों पर मुश्तमिल है? जी तो याद रखिएगा तौबतुन्नसूह जो है 12 फ़सलों पर मुश्तमिल है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बात करें तो इनके पैदाइश जो है 1830 ईस्वी को जो है 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई है। ठीक है, और वफ़ात 1913 ईस्वी को हुई है। ठीक है, वफ़ात कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये किनका नाविल है? इब्नुल वक्त। याद रखिएगा इब्नुल वक्त ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद का ही है। उमराउ जनादा मिर्ज़ा हादिर उसवा का, फसाना आज़ाद रतननाथ सरशार का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? सिराज औरंगाबादी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी या फिर इब्ने निशाती? तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब आ जाएगा वली दक्कनी। ठीक है, वली दक्कनी के हवाले से इनके पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पैदाइश जो है 1668 ईस्वी को हुई है औरंगाबाद में और वफ़ात 1720 ईस्वी को हुई है। ठीक है, अहमदाबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? फ़ानी, जीगर, हसरत या फिर फ़िराक गोरखपुरी? जी तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा हमारा फ़िराक गोरखपुरी। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। ठीक है, और इनके अलावा अली सरदार जाफ़री को, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को और शहरियार को मिला है। ठीक है, उर्दू में 4 जो है लोगों को मिला है, फ़िराक गोरखपुरी, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, शहरियार और अली सरदार जाफ़री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेहरबान ख़ान रिंद की सरकार से इनमें से कौन वाबस्ता था? सौदा, मीर, मुसहफ़ी या फिर इंशा? जी तो सवाल नंबर 20 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मेहरबान ख़ान रिंद की सरकार से जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है वाबस्ता थे। याद रखिए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है मेहरबान ख़ान रिंद की सरकार से वाबस्ता थे। इनके बारे में बात करें तो याद रखिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1781 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन सी सिन्फ़ ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है? सफ़रनामा, खुदनविश्त, नावल या फिर दास्तान? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दास्तान। ठीक है, दास्तान जो है ये ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है। ठीक है, और इसकी ख़ुसूसियत क्या है? तो याद रखिएगा तजस्सुस, तहय्युर और तवालत जो है इस दास्तान की ख़ुसूसियत है। ठीक है, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये कौल है दास्तान के ताल्लुक़ से। दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। दास्तान के हवाले से, दास्तान के ताल्लुक़ से ये बयान, ये कौल किसका है?
दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। जी तो याद रखिएगा कलीमुद्दीन अहमद, ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है, दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। दास्तान तराजी मिन जुमला फ़नून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। ये कौल किसका है? जी तो याद रखिएगा गालिब का, ठीक है, ये गालिब का कौल है। दास्तान तराजी मिन जुमला फ़नून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है, ठीक है। दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं? तो याद रखिएगा दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी 6 हैं। तवालत, प्लाट, किरदार निगारी, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, मंज़र निगारी और उसलूब निगारिश। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिएगा उर्दू की पहली दास्तान जो है सबरस है, ठीक है। सबरस को किसने लिखा था? तो मुल्ला वजी ने। मुल्ला वजी ने कब लिखा था? याद रखिएगा 1635 ईस्वी में। चलिए अब बताइए कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान जो है किसकी तसनीफ़ है? खूब गौर से सुनिए, फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, सभी पॉइंट अहम है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान कौन सी है और किसकी है? जी तो याद रखिएगा शुमाली हिंद की पहली दास्तान जो है ईसवी ख़ान की तसनीफ़ क़िस्सा-ए महर अफरोज़ दिलबर है, ठीक है। याद रखिएगा शुमाली हिंद की पहली तसनीफ़ जो है ईसवी ख़ान की तसनीफ़ क़िस्सा-ए महर अफरोज़ दिलबर है, ठीक है। इसे ईसवी ख़ान ने कब लिखा था क़िस्सा-ए महर अफरोज़ दिलबर को? तो याद रखिएगा 1770 ईस्वी को, ठीक है, 1770 ईस्वी को जो है ईसवी ख़ान ने क़िस्सा-ए महर अफरोज़ दिलबर को लिखा था, ठीक है। और ये शुमाली हिंद की पहली दास्तान है। चलिए अब मुझे बताइए कि उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना किसे करार दिया जाता है? उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना किसे करार दिया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा नौ तर्ज़ मुरस्सा, नौ तर्ज़ मुरस्सा को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना जो है नौ तर्ज़ मुरस्सा को करार दिया जाता है। और ये किसकी तख्लीक़ है? तो याद रखिएगा अता हुसैन ख़ान तहसीन की, ठीक है। अता हुसैन ख़ान तहसीन ने नौ तर्ज़ मुरस्सा को जो है 1775 ईस्वी में लिखा था। 1775 ईस्वी में जो है अता हुसैन ख़ान तहसीन ने नौ तर्ज़ मुरस्सा को लिखा था। और ये उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना है, ठीक है। उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना दास्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा नौ तर्ज़ मुरस्सा। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। शुमाली हिंद की पहली तबाज़ाद, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ाद दास्तान कौन सी है और किसकी है और कब लिखी गई है? ठीक है, तो याद रखिएगा शुमाली हिंद की पहली तबाज़ाद दास्तान जो है रजब अली बैग सुरूर की है, फ़साने अजायब, ठीक है। शुमाली हिंद की पहली तबाज़ाद दास्तान रजब अली बैग सुरूर की फ़साने अजायब है, ठीक है। रजब अली बैग सुरूर ने इस दास्तान को कब लिखा था? तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी को, ठीक है, 1824 ईस्वी को जो है रजब अली बैग सुरूर ने इस दास्तान को लिखा था। और ये दास्तान कब शाये हुई है? तो याद रखिएगा पहली बार 1843 ईस्वी को, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ जी, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बढ़ रहे हैं, ठीक है, 1843 ही लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 है, बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह है? मुल्क यमन, मुल्क फ़ारस, मुल्क अरब या फिर मुल्क रोम? जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा यमन, फ़ारस, अजम, चीन वाला जो है मेथड इस्तेमाल कीजिए। यमन, फ़ारस, अजम, चीन। यमन पहला, फ़ारस दूसरा, अजम जो है तीसरा और चीन जो है चौथा। तो यहाँ पूछा जा रहा है बागो बहार में दूसरा दरवेश यमन, फ़ारस, तो यहाँ बी हो जाएगा फ़ारस, मुल्क फ़ारस का, ठीक है। 22 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। बागो बहार में दूसरा दरवेश जो है मुल्क फ़ारस का बादशाह रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला दरवेश जो है यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का रहता है और दूसरा दरवेश फ़ारस का शहज़ादा है, तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा और चौथा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि पहले दरवेश की शादी किससे होती है? पहले दरवेश की शादी किससे होती है? तो याद रखिएगा दमिश्क, ठीक है, दमिश्क की शहज़ादी से। पहले दरवेश की शादी जो है दमिश्क की शहज़ादी से होती है। चलिए बताइए कि दूसरे दरवेश की शादी किससे होती है? दूसरे दरवेश की शादी तो याद रखिएगा बसरा, ठीक है, बसरा की शहज़ादी से। दूसरे दरवेश की शादी जो है बसरा की शहज़ादी से होती है।
اور تیسرے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تیسرے درویش کی شادی تو یاد رکھیے گا فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے، ٹھیک ہے، فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے۔ اور چوتھے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا پیر مرد اجمی کی بیٹی سے۔ چوتھے درویش کی شادی جو ہے کس سے ہوتی ہے تو پیر مرد اجمی کی بیٹی سے، پیر مرد اجمی کی بیٹی سے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ گھوڑے، اسیمرغ، مور یا پھر بیل؟ جی ساتھیو تو سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بیل، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، بیل اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ باغ و بہار میں بیل جو ہے نیشا پور کے سوداگر کے کتے کا ذکر ہے، یاد رکھیے گا باغ و بہار میں بیل اور نیشا پور کے سوداگر کے کتے کا ذکر کیا گیا ہے جس کے گلے میں 12 لال تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 24 ہے، یہ کس نے کہا کہ میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی؟ علی عباس حسینی، یوسف سرمست، احسن فاروقی یا پھر شمس الرحمن فاروقی صاحب؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، ٹھیک ہے، احسن فاروقی نے یہ کہا تھا کہ میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی۔ کس نے کہا تھا تو احسن فاروقی نے کہا جو ہے میر امن نے جو ہے احسن فاروقی نے کہا تھا کہ میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے، میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی، احسن فاروقی صاحب نے کہا تھا۔ چلیے ایک سوال کا اور جواب دیجیے، کو غور سے سنیے۔ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے، جی تو یاد رکھیے گا احسن فاروقی صاحب ہی نے کہی تھی، ٹھیک ہے، یہ قول احسن فاروقی کا ہی ہے، میر امن کے ہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے میر امن کے باغ و بہار کے تعلق سے ایک قول ہے، اسے آپ نے آنسر دینا ہے، یہ کس کا قول ہے بتائیے؟ باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب زندہ اسلوب ہے، ٹھیک ہے، باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب زندہ اسلوب ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا سید عبداللہ، سائنٹیفک نقاد سید عبداللہ کا یہ قول ہے، باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب زندہ اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک سوال کا اور آنسر کیجیے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ قول یہ بیان کس کا ہے میر کے تعلق سے؟ جی تو یاد رکھیے گا سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کا یہ قول ہے، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ میر کے حوالے سے ایک اور قول بتائیے، یہ کن کا قول ہے؟ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان، یہ قول کن کا ہے؟ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان، جی تو یاد رکھیے گا گیان چند جین کا یہ قول ہے، میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان، ٹھیک ہے۔ چلیے میر کے تعلق سے ایک اور، میر کے باغ و بہار کے تعلق سے جو ہے میر امن کے باغ و بہار کے تعلق سے جو ہے ایک اور قول کا جواب دیجیے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یہ قول کن کا ہے؟ جی دوستو تو یاد رکھیے گا کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے، باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے باغ و بہار کے تعلق سے ایک اور قول بتائیے، یہ قول کن کا ہے؟ لاسٹ ہے یہ، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے، یہ قول کس کا ہے باغ و بہار کے تعلق سے؟ میر امن کی باغ و بہار کے تعلق سے یہ قول ہے بقول احتشام حسین کا، ٹھیک ہے، احتشام حسین کا یہ قول ہے، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے، احتشام حسین کا یہ قول ہے، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔
رانی केतकी की कहानी में ओदे भान किसका बेटा है? राजा वीरभान, राजा सूरजभान, राजा इंद्रभान या राजा जगत प्रकाश? जी तो सवाल नंबर 25 का हमारा सही जवाब हो जाएगा राजा सूरजभान। ठीक है, रानी केतकी की कहानी में ओदेभान जो है राजा सूरजभान का बेटा रहता है, याद रखिएगा। रानी केतकी की कहानी में ओदेभान जो है राजा सूरजभान का बेटा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 है, फसन आज़ाद में आज़ाद की महबूबा का नाम क्या था? हुस्न आरा, नजमुन्निसा, बदरुन्निसा, अंजुमन आरा। कल मैंने जो है अपने ग्रुप में और मुगाने उर्दू ग्रुप में जो है मैंने ये सवाल पूछा था, तो बहुत लोग इसका जवाब अंजुमन आरा बता रहे थे। तो अंजुमन आरा नहीं होगा, हुस्न आरा होगा। ठीक है, फसान आज़ाद में जो है आज़ाद की महबूबा का नाम हुस्न आरा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और फसान आज़ाद किनका नावल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंडित रतन नाथ सरसार का। ठीक है, पंडित रतन नाथ सरसार का ये नावल है। ठीक है, याद रखिएगा। फसन आज़ाद कब अमल में आया? तो याद रखिएगा 1880 ईस्वी को। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि इसमें जो है कितने प्लाट हैं? फसन आज़ाद में कुल कितने प्लाट हैं? तो याद रखिएगा फसन आज़ाद में टोटल 6 प्लाट हैं। ठीक है, फसन आज़ाद में टोटल 6 प्लाट हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस नावल में हुसैन का किरदार जानदार है? फ़तह इंदलीस, फिरदौस बरी, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना या फिर हुस्न एंजलीना? किस नावल में हुसैन का किरदार जानदार है? जी तो सवाल नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा फिरदौस बरी। ठीक है, फिर नावल फिरदौस बरी में हुसैन का किरदार जो है जानदार होता है। नावल फिरदौस बरी किनका नावल है? तो याद रखिएगा अब्दुल हलीम शरर का ये नावल है। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश 1860 ईस्वी को लखनऊ में, और वफ़ात 1926 ईस्वी को जो है लखनऊ ही में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये नावल कब अमल में आया है? तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी को। ठीक है, 1899 ईस्वी को फिरदौस बरी जो है मंजर आम पर आया है। और फिरदौस बरी के पहले बाब का उन्वान क्या है? तो याद रखिएगा परियों का गोल। और आखिरी बाब के उन्वान का क्या नाम है? तो याद रखिएगा इंतकाम। ठीक है, आखिरी बाब का उन्वान क्या है? तो याद रखिएगा इंतकाम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 है, मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल का किस्सा किससे माखूज है? जी तो इसे मैं अक्सर आप लोगों से ज़िक्र करता रहता हूँ, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अलिफ लैला। ठीक है, मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल का किस्सा जो है अलिफ लैला से माखूज है। और मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल किनका मसनवी है? तो याद रखिएगा गव्वासी का है। ठीक है, गव्वासी का ये मसनवी है। ठीक है, गव्वासी ने इसे 1625 ईस्वी में मुकम्मल किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह या फिर इब्राहिम कुतुब शाह? जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबरस जो है मुल्ला वजीह ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। ठीक है, कब लिखी थी? तो याद रखिएगा 1635 ईस्वी में। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि इसे किसने और कब जो है शाये किया था? जी तो याद रखिएगा सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने जो है 1932 ईस्वी में जो है शाये किया था। याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक ने सबरस को जो है अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 ईस्वी में शाये किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। मुल्ला वजही ने सबरस में इश्क पर कितने इंशाइए लिखे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुल्ला वजही ने सबरस में इश्क पर कितने इंशाइए लिखे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों 11। ठीक है, मुल्ला वजही ने सबरस में जो है इश्क पर 11 इंशाइए लिखे हैं। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। सबरस के मुतालिक ये किसने लिखा है कि यह तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है जिसको फ़र्ज़ी क़िस्से के तौर पर लिखा है? जी तो याद रखिएगा नसीरुद्दीन हाशमी ने। ठीक है, सबरस के मुतालिक नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा है कि तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30 है, कौन सा बयान इनमें से दुरुस्त है? मुल्ला वजी का ताल्लुक़ नज़ामी शाही दौर से है, कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन नज़ामी की तसनीफ़ है, बहार इश्क मीर तक़ी मीर की मसनवी है या फिर गुलज़ार इरम कायम की तसनीफ़ है? जी साथियों, तो सवाल नंबर 30 का हमारा सही जवाब हो जाएगा
बी कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है, ठीक है, याद रखिएगा। और मुल्ला वजी का ताल्लुक़ जो है निज़ाम शाही दौर से नहीं है बल्कि कुतुब शाही दौर से है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। बहार इश्क मीर तक़ी मीर की मसनवी नहीं है बल्कि शौक़ लखनवी की मसनवी है, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवी है बहार इश्क। गुलज़ार इरम जो है ये क़ाइम की नहीं है बल्कि किन की है, तो याद रखिएगा मीर हसन की, ठीक है, मीर हसन की ये मसनवी है गुलज़ार इरम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31 है, उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किस तसनीफ़ का नाम लिया जाता है? मिराजुल आशिकीन, जुनूनिया, तमसील नामा या फिर सबरस? जी तो सवाल नंबर 31 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सबरस। मुल्ला वजी की दास्तान सबरस जो है सब उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर जो है सबरस का नाम लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जज्बात इंसानी को हरकत में लाए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, नियाज़ फ़तेहपुरी या मेहदी अफ़ादी? जी साथियों तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा नियाज़ फ़तेहपुरी, ठीक है। नियाज़ फ़तेहपुरी का यह ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कौल है, इसे याद रखिएगा। किसका कौल है? तो नियाज़ फ़तेहपुरी का लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। नियाज़ फ़तेहपुरी, नियाज़ फ़तेहपुरी की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा 1887 ईस्वी को, ठीक है। 1887 ईस्वी को जो है नियाज़ फ़तेहपुरी की बाराबंकी में जो है पैदाइश हुई है। और वफ़ात कब हुई है? तो याद रखिएगा 1966 ईस्वी को, 1966 ईस्वी को पाकिस्तान में हुई है, ठीक है। नियाज़ फ़तेहपुरी की अहम किताब का नाम इंतक़ादियात, ठीक है, इंतक़ादियात इनका बहुत ही मशहूर किताब है, ठीक है। और नियाज़ फ़तेहपुरी जो है तासुराती जमालियाती तनक़ीद नक़ास के से जाने जाते हैं। ये जो है नियाज़ फ़तेहपुरी जो हैं वो तासुराती और जमालियाती नक़ाद हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए मेहदी अफ़ादी के बारे में बात कर लेते हैं। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिए मेहदी अफ़ादी की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई है। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1921 ईस्वी को हुई है, ठीक है। 1870 ईस्वी को मेहदी अफ़ादी की पैदाइश है और वफ़ात 1921 ईस्वी को। आज़ाद के बारे में बात हो चुकी है, इमदाद इमाम असर की भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 33 है, रोशन है इस तरह दिल सोज़ा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चराग एक। ये किनका शेर है? मुसैफ़ी, मीर दर्द, मीर तक़ी मीर या फिर सोज़? जी तो सवाल नंबर 33 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर का यह शेर है, रोशन है इस तरह दिल सोज़ा में एक दाग, रोशन है इस तरह दिल सोज़ा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चराग एक। इनका शेर है तो याद रखिएगा मीर तक़ी मीर का, ठीक है। मीर के बारे में बात करें तो मीर तक़ी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को आगरा में हुई है और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में, ठीक है। मुसैफ़ी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा मुसैफ़ी की पैदाइश 1747 ईस्वी को अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुई है। 1747 ईस्वी को मुसैफ़ी की पैदाइश अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुई है और वफ़ात 1824 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश मीर तक़ी मीर के 1 साल पहले 1721 ईस्वी को हुई है, ठीक है, दिल्ली में। और वफ़ात 1785 ईस्वी को जो है 1785 ईस्वी को दिल्ली में ही हुई है। मीर सोज़ के बारे में बात करें तो मीर सोज़ की पैदाइश दोस्तों याद रखिएगा इनकी भी पैदाइश जो है ख्वाजा मीर दर्द के ही दिन है, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द की जो पैदाइश है 1721 उसी दिन इनकी पैदाइश है, यानी उसी साल। मीर सोज़ की पैदाइश जो है 1721 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1798 ईस्वी को हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34 है, जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? मज़हरियत, मार्क्सियत, वजूदियत या फिर मंतकी इस्बातियत? जी तो इस सवाल का सवाल नंबर 34 का हमारा सही जवाब आ जाएगा वजूदियत, ठीक है। याद रखिएगा जदीदियत की फ़िक्री बुनियादी में जो है वजूदियत का ख़ास किरदार रहा है। और आप मुझे बताइए कि जदीदियत के अलमबरदार कौन थे? जदीदियत के अलमबरदार कौन थे? तो याद रखिएगा शमसुर रहमान फ़ारूक़ी,
शमशेर रहमान फ़ारूक़ी जो है ये जदीदियत के अलम्बरदार थे। ठीक है, शमशेर रहमान फ़ारूक़ी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1935 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात कब हुई दोस्तों, तो याद रखिएगा 2020 ईस्वी को जो है 2020 ईस्वी को इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल का जवाब दीजिए कि शमशेर रहमान फ़ारूक़ी जो है वो किस रिसाला के बानी और मुदीर रहे थे। जी, तो याद रखिएगा महनामा शब खून, महनामा शब खून के बानी और मुदीर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35 है, गुदाज़े शब किसका मजमुआ कलाम है। गुदाज़े शब किसका मजमुआ कलाम है। मजाज, जानिसार अख्तर, मजरू सुल्तानपुरी या फिर जज्बी। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, जज्बी। गुदाज़े शब ये जज्बी का, मुईन अहसन जज्बी का जो है शेरी मजमुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा मुईन अहसन जज्बी का मजमुआ कलाम फ़िरोज़ा बहुत ही मशहूर है, सुखन मुख्तसर भी मशहूर है। ठीक है, और सच कहता हूँ कि, सच कहता हूँ कि ये खुद नविश्त है मुईन अहसन जज्बी का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुईन अहसन जज्बी की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी को। मुईन अहसन जज्बी की पैदाइश 1912 ईस्वी को जो है आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात कब हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2005 ईस्वी को अलीगढ़ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। तारीख़ इल्मुल कलाम का मुसन्निफ़ कौन है। हाली, शिबली, शरर या फिर सर सैयद। जी, तो सवाल नंबर 36 का हमारा सही जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी। तारीख़ इल्मुल कलाम जो है अल्लामा शिबली नोमानी की तख्लीक़ है। ठीक है, शिबली की पैदाइश कब हुई है, तो 1857 ईस्वी को आज़मगढ़ में, वफ़ात 1914 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 37 है, सर सैयद के रुफ़क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी है। सैयद मेहदी अली मोहसिन अल मुल्क, चिराग अली, मौलवी ज़काउल्लाह या फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। जी, तो सवाल नंबर 37 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मौलवी ज़काउल्लाह। सर सैयद के रुफ़क़ा में सबसे कसीर, सबसे ज़्यादा तसानीफ़ जो है मौलवी ज़काउल्लाह के हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी जो है तसानीफ़ कम बेस जो है 43 है। ठीक है, 43 तसानीफ़ जो है इन्होंने लिखे हैं। और याद रखिएगा इनके हवाले से तारीख़ हिंदुस्तान इनकी किताब है। तारीख़ हिंदुस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, तारीख़ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये किताब जो है 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है तारीख़ हिंदुस्तान, तो याद रखिएगा 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तारीख़ हिंदुस्तान किसकी किताब है, तो याद रखिएगा मौलवी ज़काउल्लाह साहब की। मौलवी ज़काउल्लाह के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी पैदाइश जो है 1832 ईस्वी को हुई है। ठीक है, दिल्ली में, और वफ़ात 1910 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 38 है, सबरस में दिल का जासूस कौन है। नज़र, लट, हिम्मत या फिर अक़ल। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा नज़र। ठीक है, सबरस में दिल का जासूस नज़र रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। ज़ौक़, सौदा, इंशा या फिर मिर्ज़ा ग़ालिब। जी, तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। ठीक है, और इनका दाखिले नसाब कसीदा कौन सा है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, तो याद रखिएगा हैं मेरे आबलाए दिल के तमाशा गौहर। इसमें कितने मतले हैं, तो याद रखिएगा 2 मतले हैं। ठीक है, और कितने अशार हैं, तो 72 अशार, 72/2। ठीक है, याद रखिएगा हैं मेरे आबलाए दिल के तमाशा गौहर में 2 मतले और 72 अशार हैं। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश जो है दोस्तों, याद रखिएगा 1789 ईस्वी को। ये 1789 ईस्वी को जो है दिल्ली में हुई है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात कब हुई है, तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी को। ठीक है, 1854 ईस्वी को हुई है। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए कि ख़ाक़ानी हिंद का खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को किसने अता किया था। ख़ाक़ानी हिंद का खिताब, तो याद रखिएगा अकबर शाह सानी ने, अकबर शाह सानी ने जो है ख़ाक़ानी हिंद का खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अता किया था। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए, मलिकुश शुअरा का खिताब किसने
शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अता किया था? जी तो याद रखिएगा बहादुर शाह ज़फ़र ने। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है मलिक शुरा का खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को दिया था और ख़ाक़ानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। ठीक है, चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। किसने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है? किसने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है? तो याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है। ठीक है, चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है, मगर उन दोनों शायरान नामी में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। यह कौल किनका है? जी तो याद रखिएगा इमदाद इमाम असर का यह कौल है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है, मगर इन दोनों शायरान नामी में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ये कौल जो है इमदाद इमाम असर का है। ठीक है, एक और कौल का जवाब दीजिए, ये कौल किनका है? गज़ल और क़साइद से दफ्तर दफ्तर है और हर शेर इंतखाब, ये कौल किनका है? तो याद रखिएगा ये सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। ठीक है, गज़ल और क़साइद से दफ्तर दफ्तर है और हर शेर इंतखाब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40 है, किसकी गज़लों में इश्क़िया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? किसकी गज़लों में इश्क़िया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? मुसैफ़ी, ज़ौक़, जुर्रत या फिर मोमिन ख़ां मोमिन? जी तो सवाल नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा मोमिन ख़ां मोमिन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। मोमिन ख़ां मोमिन की गज़लों में इश्क़िया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है। ठीक है, इनके बारे में बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा मोमिन ख़ां मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। ठीक है, और वफ़ात 1852 ईस्वी को कोठे के गिरने की वजह से जो है 1-2 हफ्ते के बाद इनकी मौत हुई है। इनके वालिद का क्या नाम था दोस्तों? तो याद रखिएगा गुलाम नबी। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए कि मोमिन का ख़ानदानी पेशा क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मोमिन का ख़ानदानी पेशा जो है तबाबत था। याद रखिएगा मोमिन का ख़ानदानी पेशा तबाबत था। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। मोमिन के उस्ताद का क्या नाम था? मोमिन के उस्ताद का क्या नाम था? याद रखिएगा शाह नसीर। ठीक है, मोमिन के उस्ताद का नाम था शाह नसीर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 41 है, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? हैदर बख्श हैदरी, रुस्तम अली, अता हुसैन ख़ान तहसीन या फिर ईसवी ख़ान तहसीन? जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा ईसवी ख़ान तहसीन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर क्या है? तो याद रखिएगा शुमाली हिंद की पहली दास्तान है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी ख़ान की तसनीफ़ क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर है, जिसे जो है ईसवी ख़ान ने 1770 ईस्वी में जो है लिखा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जदीद उर्दू गज़ल को सिमतो रफ्तार किसने अता की? जदीद उर्दू गज़ल को सिमतो रफ्तार जो है किसने अता की? गालिब, फ़ानी, हसरत या फिर शाद आज़िम आबादी? जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा हसरत। ठीक है, हसरत मोहानी ने जदीद उर्दू गज़ल को सिमतो रफ्तार जो है अता की है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43 है, उर्दू मोहल्ला के मुदीर कौन थे? सर सैयद, मौलवी मोहम्मद बाक़र, राशिदुल खैरी या फिर हसरत मोहानी? जी तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। ठीक है, उर्दू मोहल्ला के मुदीर जो है हसरत मोहानी थे। हसरत मोहानी का असल नाम क्या था दोस्तों? हसरत मोहानी का असल नाम तो याद रखिएगा सैयद फ़ज़लुल हसन। ठीक है, इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी को जो है मोहान में हुई है और वफ़ात कब हुई है? तो 1951 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ हसरत मोहानी की नहीं है? मायार सुखन, निकात सुखन, मुहासन सुखन या फिर मुआइब सुखन? जी तो सवाल नंबर 44 का सही जवाब हो जाएगा मायार सुखन। मायार सुखन किसकी तख्लीक़ है? तो याद रखिएगा मायार सुखन तालिब अंसारी की है। मायार सुखन जो है तालिब अंसारी की तसनीफ़ है।
ठीक है। मयार सुखन तालिब अंसारी की तसनीफ़ है। निकात सुखन, महासिन सुखन और मुहाइब सुखन के तख्लीक़कार जो हैं हज़रत मोहानी हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 45। खुसरो अंजुम के आया सर्फ में शब को था गंजी न ए गौहर खुला हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं धोखा बाज़ीगर खुला। ये क्या है? मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है या फिर रुबाई है? जी तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा कसीदा। ठीक है, ये एक कसीदा है और ये किन का कसीदा है तो याद रखिएगा गालिब का। ये कसीदा जो है दीवान गालिब से अख़ज़ किए गए हैं। ठीक है। सुबह दम दरवाज़ा ए खबर खुला महर आलम ताब का मंज़र खुला खुसरो अंजुम के आया सर्फ में शब को था गंजीर ए गौहर खुला। ठीक है, ये कसीदा जो है गालिब का है और ये दीवान गालिब से अख़ज़ किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 46 है कसीदे के अज्ज़ा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी तो सवाल नंबर 46 का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों सी तशबीब गुरेज़ मदह मुद्दा। ठीक है, तशबीब गुरेज़ मदा मुद्दा। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए कसीदे की कितने किस्में होती हैं? कसीदे की कितने किस्में हैं तो याद रखिएगा कसीदे की 2 किस्में हैं, खिताबिया पहला है और तमहीदिया दूसरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 है गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर कौन है? मिर्ज़ा सौदा नुसरती, इब्राहिम ज़ौक़ या फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर कौन है? जी तो याद रखिएगा सवाल नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर हैं। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को ये है और वफ़ात 1869 ईस्वी को दिल्ली में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी को ये 1789 ईस्वी को ये और वफ़ात 1854 ईस्वी को हुई है। ठीक है, गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर याद रखिएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा नहीं है। सौदा की पैदाइश जो है 1712 ईस्वी को हुई है। ठीक है, कहाँ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, और हाल ही के 1837 तो ये भी नहीं है। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 48 है ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? वाजिद अली शाह, कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह ज़फ़र या फिर औरंगज़ेब। जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 48 का बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे। अगला सवाल है इनमें सबसे कदीम किताब कौन सी है? करबल कथा, बाग़ो बहार, क़िस्सा महर अफ़रोज़ दिलबर या मसनवी कदम राव पदम राव। ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मसनवी कदम राव पदम राव। किसकी मसनवी है तो याद रखिएगा निज़ामी बेदरी की। ठीक है, निज़ामी बेदरी ने इस मसनवी को 1421 से 1435 के दरमियानी हिस्से में लिखा था। ठीक है, करबल कथा किनका है तो याद रखिएगा करबल कथा जो है फ़ज़ल अली फ़ज़ली का है। ठीक है, दस्तान है फ़ज़ली का। ठीक है, और फ़ज़ली ने इसे कब लिखा था तो याद रखिएगा 1732 या 33 में। ठीक है, और बाग़ो बहार आप लोगों को मालूम होगा ये बाग़ो बहार मीर अमन का है। ठीक है, और दस्तान क़िस्सा महर अफ़रोज़ दिलबर ये ईसवी ख़ान का तसनीफ़ है। ठीक है, ईसवी ख़ान का दस्तान है। ईसवी ख़ान ने 1770 ईस्वी में लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एजाज़ व इख्तिसार किस मसनवी की खुसूसियत है? ज़ोहर इश्क, दरियाए इश्क, गुलज़ार नसीम या फिर सेहरुल बयान। ये तो सवाल नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा गुलज़ार नसीम। ठीक है, गुलज़ार नसीम को दयाशंकर नसीम ने कब लिखा था तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में। ठीक है, और गुलज़ार नसीम पहली बार कब शाये हुई है तो याद रखिएगा दोस्तों 1844 ईस्वी में। ठीक है, 1844 ईस्वी में जो है गुलज़ार नसीम पहली बार शाये हुई है। ठीक है, दयाशंकर नसीम के पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है तो लखनऊ में, और वफ़ात 1845 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है।
दयाशंकर नसीम ने किसके अहद में होश संभाला था? तो याद रखिएगा अमजद अली शाह। ठीक है, अमजद अली शाह के अहद में उन्होंने होश संभाला था। इनके उस्ताद का क्या नाम था? तो याद रखिएगा आतिश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, एक सवाल का और जवाब देते जाइएगा कि गुलजार नसीम को किसने मुरतब किया? तो मैं हमेशा जिक्र करते रहता हूँ जी, तो याद रखिएगा रशीद हसन ख़ान ने। रशीद हसन ख़ान ने गुलजार नसीम को मुरतब किया है 2002 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 51 है, दुरुस्त जोड़ क्या है? इनमें से दुरुस्त जोड़ आपने बताना है क्या है जी। सवाल नंबर 51 का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, सबा वीरा, ये नूर मीम राशिद का है। वदाए इंसाफ आज़ाद का है। किसान जो है किनका है? तो याद रखिएगा जोश का है, इकबाल का नहीं है। लाला सहराई इकबाल का है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। मावरा जो है किनका है? तो ये नूर मीम राशिद का है। ठीक है, मीरा जी का नहीं है। ठीक है, मावरा जो है नूर मीम राशिद का है। और बरसात की बहारें किनका है दोस्तों? बरसात की बहारें, तो याद रखिएगा बरसात की बहारें नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। बरसात की बहारें नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। बारिश का पहला कतरा, ये हाल ही का नहीं है, किनका है बारिश का पहला कतरा? तो याद रखिएगा इस्माइल मेरठी। ठीक है, इस्माइल मेरठी का ये नज़्म है बारिश का पहला कतरा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52 है, अल्लामा इकबाल ने किस फ़ारसी शायर के साथ जावेद नामा में अफलाक की सैर की? सादी, रूमी, हाफिज़ या फिर बेदल? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रूमी। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने जो है फ़ारसी शायर रूमी के साथ जावेद नामा में अफलाक की सैर की है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 53 की तरफ। जिंदा नामा इनमें से क्या है? शेरी मजमुआ, अफसानवी मजमुआ, नावल या फिर खाकों का मजमुआ? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शेरी मजमुआ। किनका शेरी मजमुआ है? तो याद रखिएगा फैज़ अहमद फैज़ का ये शेरी मजमुआ है जिंदा नामा। ठीक है, जिंदा नामा किनका शेरी मजमुआ है? तो याद रखिएगा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? बागो बहार, अलिफ लैला, सबरस या फिर फसाने अजैब? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा बागो बहार। बागो बहार मीर अमन का दास्तान है। ठीक है, मीर अमन ने जो है कुल 2 किताबें तहरीर की है। कौन कौन सी? तो बागो बहार, ठीक है, और गंज खूबी। बागो बहार जो है कब मुकम्मल हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा बागो बहार 1802 ईस्वी में जो है मीर अमन ने मुकम्मल किया था। और इसकी सन इशाअत जो है इसके ठीक 2 साल बाद 1804 ईस्वी में हुई है। ठीक है, चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए जो है गंज खूबी जो है मीर अमन का दूसरी तख्लीक गंज खूबी, ये किस किताब का जो है तर्जमा है? जी, तो याद रखिए गंज खूबी मुल्ला वाइज़ हुसैन की किताब, ठीक है, अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है। इसमें एक और चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है गंज खूबी वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है, लेकिन UGC जो है वो अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है। ठीक है, गंज खूबी जो है अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 55 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका सही ज़मानी तरतीब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग इसके आंसर करने की कोशिश करें। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, मैदान अमल, लंदन की एक रात, गालिब, आग का दरिया और गुरेज। ठीक है, इससे पहले भी जो है मैंने ये सवाल कराया था। ठीक है, तो मैदान अमल किनका नावल है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद का नावल है। कब अमल में आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1930 या 32। ठीक है, 1930 या 32 में। लंदन की एक रात किनका नावल है? तो याद रखिएगा लंदन की एक रात ये सज्जाद ज़हीर का है। ठीक है, ये अमल जो है 1938 ईस्वी में आया था, मुकम्मल जो है 1938 ईस्वी में हुआ था, और इसकी सन शात जो है 1939 है। याद रखिएगा लंदन की एक रात 1939। गालिब किनका नावल है दोस्तों? गालिब याद रखिएगा गालिब जो है ये कादी अब्दुल सत्तार का नावल है। कादी अब्दुल सत्तार का नावल है। कब अमल में आया है? तो याद रखिएगा 1986। ठीक है, और आग का दरिया कुर्तुल ऐन हैदर का नावल है।
ये कब शाये हुआ है तो याद रखिएगा 1959, ठीक है। और गुरेज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल है, किनका है तो अज़ीज़ अहमद का, अज़ीज़ अहमद का नावल है। और ये कब मंजर आम पर आया है तो इसे भी याद रखिएगा 1982 में। यहाँ से थोड़ा उल्टा फुल्टा है, लेकिन ए और बी और डी में आप देखेंगे तो यहाँ गड़बड़ है, लेकिन हमारा जो है ज़मानी तरतीब यही दुरुस्त होगा अगर इस एतबार से देखा जाए, ठीक है, मिला लीजिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही ज़मानी तरतीब किस ज़ुमरे में है? जी तो सवाल नंबर 56 का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। मिरातुल उरूस, फसान आज़ाद, उमराव जान अदा और फिर गोदान। मिरातुल उरूस ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, कब मंजर आम पर आया था तो याद रखिएगा 1869। फसान आज़ाद पंडित रतन नाथ सरशार का नावल है, कब अमल में आया तो 1880, ठीक है। और उमराव जान अदा 1899, ठीक है, 1899। मिर्ज़ा आदिल रसूल का नावल को मुंशी प्रेमचंद का गोदान 1936 ईस्वी में शाया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी केतकी की कहानी का अहम वस्फ़ क्या है? फ़ारसी अनासिर से आरी होना, फ़ारसी अनासिर से ममलू होना, फ़ारसी मुहावरात का बकसरत होना, या फिर फ़ारसी दास्तानों का हू बहू चरबा होना। ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ़ारसी अनासिर से आरी होना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी कहानी इंशाउल्लाह खान इंशा ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी दोस्तों? तो याद रखिएगा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर 1803 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। और इसे किसने मुरतब किया था, किताबी सूरत में किसने शाया किया है? तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक ने 1933 ईस्वी में। मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को 1933 ईस्वी में जो है किताबी सूरत में शाया किया है। इंशा के पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में हुई है और वफ़ात 1817 ईस्वी को लखनऊ में। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए कि इंशा किसके ज़माने में लखनऊ गए थे? जी तो याद रखिएगा आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में इंशा जो है लखनऊ गए थे। रानी केतकी किरदार जो है सूरज भान है, रानी कामलता है, रानी लक्ष्मीबास है, महेंद्र जोगीगर वगैरह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 58 है, फसान आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? इसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है, मरबूत पलाट का नावल है, आज़ाद का अफसानवी मजमुआ है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सवानी उमरी किताब है। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है। इसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है। फसान आज़ाद में लखनवी तहज़ीब की अक्कासी की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार कौन था? मार्कस, हेगल, फ्राइड या फिर अमीर फ्रॉम? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्राइड, ठीक है। तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार जो है फ्राइड थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 60 है, शायरी में उलूयत का नज़रिया पेश करने वाले मगरबी नक़ाद कौन है? होरिस, अफलातून, लॉन्जाइन्स या फिर अरस्तू? जी साथियों तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लॉन्जाइन्स। शायरी में उलूयत का नज़रिया जो है पेश करने वाले मगरबी नक़ाद हमारे लॉन्जाइन्स हैं। चलिए अगला सवाल है, किस शायर को तारीख़ गोई पर भी मलिका हासिल था? सोज़, सवाज़ नहीं होगा, यहाँ सोज़ होगा, ठीक है। हातिम, मोमिन या फिर शाह नसीर? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 61 का सही जवाब हो जाएगा मोमिन खां मोमिन को तारीख़ गोई पर भी जो है मलिका हासिल था। चलिए अगला सवाल है, मुख्तलिफ़ अज्ज़ाए तरकीबी से तश्कील करदा मरसिए की ख़ारजी हैयत को पहली बार किसने मुतारिफ़ कराया था, जिसे अनीसो दबीर ने इंतहाई कमाल तक पहुंचा दिया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये जी साथियों। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 62 डबल सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो है बी, मीर ज़मीर ने, ठीक है। मुख्तलिफ़ अज्ज़ाए तरकीबी से तश्कील करदा मरसिए की ख़ारजी हैयत को पहली बार जो है मीर ज़मीर ने मुतारिफ़ कराया था, जिसे अनीसो दबीर ने इंतहाई कमाल तक पहुंचा दिया, ठीक है।
मीर ज़मीर कौन थे? तो याद रखिएगा मीर इनका मुज़फ़्फ़र हुसैन असल नाम था, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन इनका असल नाम था, ठीक है। और ये अपने आप को उस्ताद दबीर कहते थे। मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने जो है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का तख़ल्लुस तजवीज़ किया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके हवाले से एक और पॉइंट याद रखिएगा, मीर ज़मीर ने मरसी के अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज़ादी से क़ब्ल मंटो के अफसानों पर चलाए गए मुक़द्दमों की रुदात किस किताब में बयान की गई है? आतिशबारे, धुआं, यजीद या फिर लज़्ज़ते संग? जी, तो सवाल नंबर 63 का सही जवाब हो जाएगा हमारा धुआं। आज़ादी से क़ब्ल मंटो के अफसानों पर चलाए गए मुक़द्दमों की रुदात जो है धुआं में बयान की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इब्तदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम रहा? अख्तर शिरानी, राशिद, नादिर काकोरवी या फिर अख्तरुल ईमान साहब? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा अख्तरुल ईमान, ठीक है। इब्तदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में अख्तरुल ईमान का अहम किरदार रहा है। अख्तरुल ईमान अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा, अख्तरुल ईमान की पैदाइश जो है 1915 ईस्वी को बिजनौर में हुई है और वफ़ात 1996 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नून मीम राशिद की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा, नून मीम राशिद की पैदाइश 1910 ईस्वी को पंजाब में हुई है। वफ़ात कब हुई है? तो 1975 ईस्वी को लंदन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ यादें इनमें से क्या है? यादों का मजमुआ, आबिती, रिपोर्टाज या फिर मजमुआ कलाम? इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मजमुआ कलाम। अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ यादें जो हैं ये शेरी मजमुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ उनसे नहीं किया गया? मुसैफ़ी, कुदरतुल्लाह, शफ़ीक़ औरंगाबादी या फिर मीर तक़ी मीर? ये तो सवाल नंबर 66 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मीर तक़ी मीर, ठीक है। मीर तक़ी मीर ने अपने तज़किरे में ये लिखा था कि अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ उनसे नहीं किया गया, ठीक है। मीर तक़ी मीर ने यह बात जो है अपने तज़किरा निकात-उश-शुअरा में कही थी। निकात-उश-शुअरा को मीर तक़ी मीर ने कब लिखा था? तो याद रखिएगा 1751 या 52 में, ठीक है। निकात-उश-शुअरा जो है ये फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है और निकात-उश-शुअरा को पहली बार 1922 ईस्वी में हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी ने जो है शाये किया था, ठीक है। और दूसरी बार 1935 ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक ने जो है इसे शाये किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आवाज़ नहीं क़ैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ, यह शेर किसका है? सोज़, दर्द, मीर या फिर शाद अज़ीमाबादी? ये साथी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मीर तक़ी मीर। आवाज़ नहीं क़ैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ, यह शेर जो है मीर तक़ी मीर का है, ठीक है। याद रखिएगा मीर तक़ी मीर का यह शेर है। मीर की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात हो चुकी है। सोज़ की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात हो चुकी है, एक बार और ज़िक्र कर लेते हैं। 1721 ईस्वी को हुई है, ठीक है, दिल्ली में, और वफ़ात 1798 ईस्वी को। ये ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश इनकी भी 1721 है और इनकी वफ़ात जो दोस्तों है वो 1785 है ख्वाजा मीर दर्द की, ठीक है। शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश जो है 1846 ईस्वी को पटना में हुई है और वफ़ात कब हुई है? तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ شرف الدین احمد، فصیح الدین احمد، محی الدین احمد، سلیم الدین احمد؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب آ جائے گا محی الدین احمد۔ مولانا ابوالکلام کا اصل نام محی الدین احمد تھا، اور تاریخی نام بھی یاد رکھیے گا فیروز بخت، ٹھیک ہے۔ اور لقب ان کا کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا لقب ابوالکلام تھا، اور تخلص آزاد کرتے تھے۔ پیدائش 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ 1857، 1830، 1848 یا پھر 1835؟ یہ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 1848، ٹھیک ہے۔ 1848 عیسوی میں جو ہے نا 1848 عیسوی کے آس پاس جو ہے غالب نے جو ہے خط لکھنا شروع کیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے 1850 بھی بتاتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپشن میں دیکھ لیجئے گا وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور غالب کے 2 خطوط کا مجموعہ ہے، اردو معلیٰ اور عود ہندی، ٹھیک ہے۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ عود ہندی جو ہے 1868 عیسوی میں جو ہے غالب کا یہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں جو ہے شائع کیا گیا تھا۔ اور عود ہندی میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو 162، ٹھیک ہے۔ اور عود ہندی کا دیباچہ کس نے تحریر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آل احمد سرور نے۔ عود ہندی کا دیباچہ آل احمد سرور نے تحریر کیا ہے۔ اور عود ہندی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا حکیم غلام رضا خان نے، حکیم غلام رضا خان نے، ٹھیک ہے۔ عود ہندی کو حکیم غلام رضا خان نے مرتب کیا ہے۔ اردو معلیٰ کے غالب کا یہ خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اردو معلیٰ، یاد رکھیے گا۔ اس میں جو ہے ٹوٹل جو ہے ہمارے 472 خطوط شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو معلیٰ میں 472 خطوط شامل ہیں۔ اور یہ غالب کے انتقال کے بعد غالب کے انتقال کے 19 دن بعد 1869 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1869 عیسوی میں۔ عود ہندی غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 1878، اور اردو معلیٰ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد 1869 میں شائع ہوا ہے۔ اردو معلیٰ کو غالب نے جو ہے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 2 حصوں میں، ٹھیک ہے۔ غالب نے اردو معلیٰ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا مکاتب غالب جو ہے 1837 عیسوی میں جو ہے امتیاز علی خان عرفی نے مرتب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ منٹو، بیدی، قرۃ العین حیدر یا پھر کرشن چندر؟ جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں منٹو، بیدی، قرۃ العین حیدر اور کرشن چندر کے بارے میں۔ منٹو کی پیدائش دوستو یاد رکھیے گا 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا سپٹمبر 1915 عیسوی کو، سپٹمبر 1915 عیسوی کو جو ہے کہاں ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا لاہور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ کرشن چندر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو، کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا پنجاب ہی میں، اور وفات جو ہے ان کی 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں، اور وفات 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ شروع میں ہم لوگوں نے اسے ذکر کیا تھا۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، سوال نمبر 71 کا صحیح جواب ہو جائے گا داستان۔ تجسس، تحیر اور طوالت جو ہے داستان کی خصوصیت ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ ارمغان حجاز کی نظم میں، ضرب کلیم کی غزل میں، بال جبریل کی نظم میں، بانگ درا کی غزل میں؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 72 کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، بانگ درا کی غزل میں۔
کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار بانگ درا کی غزل میں ملتا ہے۔ اقبال کے کتنے شعری مجموعے ہیں دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہو گیا بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز۔ بانگ درا جو ہے 1924 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور ضرب کلیم 1900 بال جبریل جو ہے 1935 اور ضرب کلیم 1936، ارمغان حجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے 1938۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز یا پھر بال جبریل؟ جی تو سوال نمبر 73 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ضرب کلیم۔ رومی جو ہے علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، تھی نہر علقمہ بھی خجالت سے آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ یہ شعر کس کا ہے؟ راشد، جوش، انیس یا پھر علامہ اقبال؟ جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا انیس۔ ٹھیک ہے، ان کا اصل نام میر ببر علی تھا اور تخلص انیس کرتے تھے۔ پہلے یہ حزی تخلص کرتے تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے استاد یعنی ناسخ کے کہنے پر تبدیل کر کے انیس اختیار کر لیا تھا۔ پیدائش وفات جو ہے ان کے ہم ذکر کر چکے ہیں، پھر بھی ایک دفعہ اور ذکر کر لیتے ہیں۔ 1802 عیسوی میں جو ہے فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ٹھیک ہے، والد کا نام کیا ہے ان کا؟ تو یاد رکھے گا میر مستحسن خلیق، اور دادا کا میر حسن، اور پردادا کا زاہق۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے ایک سوال کا اور جواب دیجیے میر کے تعلق سے۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا دوستو؟ تو یاد رکھیے گا مسعود حسن خان رضوی ادیب۔ ٹھیک ہے، مسعود حسن رضوی ادیب نے جو ہے کیا ہے۔ میر انیس کے مشہور مرثیے کا کیا نام ہے؟ تب خدا فارس میدان طہور تھا حر، اور داخل نصاب ان کا مرثیہ ہے نمک خان تکلم ہے فصاحت میری۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 75 کی طرف۔ داستان عہد گل کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ، سفر نامہ یا پھر مضامین کا مجموعہ؟ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مضامین کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، مضامین کا مجموعہ کن کا ہے؟ داستان عہد گل تو قرۃ العین حیدر کا۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کا یہ مضامین کا مجموعہ داستان عہد گل۔ ٹھیک ہے، اور یہ 21 مضامین کا مجموعہ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے، ان میں سے کون سا ہے؟ جی تو سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ وہ دشت و نسیم کے جھونکے و سبززار، پھولوں پہ جا بجا و گہرا ہائے آبدار۔ ٹھیک ہے، انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال یہ شعر ہے۔ وہ دشت و نسیم کے جھونکے و سبززار، پھولوں پہ جا بجا و گہرا ہائے آبدار۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی تو سوال نمبر 77 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی یہ جو ہے قرۃ العین حیدر کا ناویلیٹ ہے، یاد رکھیے گا ہاؤسنگ سوسائٹی قرۃ العین حیدر کا ناویلیٹ ہے۔ سیتا ہرن یہ افسانہ نہیں ہے دوستو، یاد رکھیے گا سیتا ہرن یہ افسانہ نہیں ہے۔ سیتا ہرن کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ بھی ناویلیٹ ہے۔ سیتا ہرن قرۃ العین حیدر کا ناویلیٹ ہے۔ ستمبر کا چاند جو ہے رپورتاج کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پتجھڑ کی آواز جو ہے، پتجھڑ کی آواز یہ ناول نہیں ہے۔ پتجھڑ کی آواز کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گا قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کے ناولٹ کے بارے میں بات کریں تو ہاؤسنگ سوسائٹی، چائے کے باغ، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، دل ربا، فصل گل آئی یا جل آئی، اور سیتا ہرن۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے قرۃ العین حیدر کے ناولٹ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی، چائے کے باغ، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، دل ربا، فصل گل آئی یا جل آئی، سیتا ہرن، اور ان کے رپورتاج جو ہے ستمبر کا چاند وغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے جو ہیں رپورتاج ہیں، میرے خیال سے 4 یا 5 ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 78 ہے،
نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، نظیر کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ عالِ مسرور، احتشام حسین مجنوں یا پھر شمس الرحمن فاروقی؟ جی اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شمس الرحمن فاروقی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نظیر کے بارے میں بات کریں دوستو تو نظیر کا اصل نام جو ہے شیخ ولی محمد اور تخلص نظیر۔ پیدائش کب ہوئی ہے تو 1740 عیسوی کو دہلی میں، وفات 1830 عیسوی کو دہلی میں، آگرہ میں ہوئی شاید۔ جی یہ کلیم الدین احمد کا ایک اور قول ہے نظیر کے تعلق سے کہ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، ٹھیک ہے، اور نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کا بے نظیر تنقید، یہ بھی قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہی ہے۔ دونوں قول امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک قول کا اور جواب بتائیے، قول کن کا ہے نظیر کے تعلق سے؟ یہاں کبیر کے اخلاق و خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ جی تو یہ قول جو ہے ہمارے نیاز فتح پوری صاحب کا ہے، یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا نیاز فتح پوری نے ہی کہا تھا نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر، ٹھیک ہے۔ کس نے، ایک اور سوال کا جواب دیجیے، کس نے نظیر کی نظم کلجوگ کو روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا؟ تو یاد رکھیے گا مجنوں گورکھپوری نے، مجنوں گورکھپوری نے نظیر کی نظم کلجوگ کو روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے داخلی نصاب نظم مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، یہ تینوں جو ہے مخمس کی حیثیت میں ہیں۔ مفلسی 35 بند، آدمی نامہ 18 بند، بنجارہ 12 بند۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب لکھنؤ میں لکھی گئی؟ بستان خیال، فسانہ آزاد، نو طرز مرصع، آرائش محفل؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ فسانہ آزاد کب منظر عام پر ہے تو 1880، ٹھیک ہے۔ اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شورسینی، اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہے؟ بندیل کھنڈی، بندیلی، ہریانی یا پھر برج بھاشا یا پھر قنوجی؟ جی تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں برج بھاشا، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شورسینی، اپبھرنش اور پراکرت کی سچی جانشین جو ہے برج بھاشا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صرف ایک سگریٹ کس کا افسانہ ہے؟ سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی یا پھر خواجہ احمد عباس؟ جی تو یاد رکھیے گا صرف ایک سگریٹ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ کن کا ہے تو راجندر سنگھ بیدی کا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ ہے؟ یہاں دیباچہ بتانا ہے کن کا لکھا ہوا ہے۔ غلام غوث بخبر، میر مہدی مجروح، میر فخر الدین، منشی جواہر سنگھ جوہر؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میر مہدی مجروح، ٹھیک ہے، میر مہدی مجروح اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ میں جو ہے میر مہدی مجروح کا لکھا ہوا دیباچہ ہے، یاد رکھیے گا۔ غالب کے خطوط کے مجموعہ اردو معلیٰ میں، ٹھیک ہے، میر مہدی مجروح صاحب کا لکھا ہوا دیباچہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ شبلی، ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد یا پھر سر سید احمد خان؟ جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ علوم کی بدنصیبی محمد حسین آزاد کا جو ہے یہ مضمون ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح سے اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، احتشام حسین، عالِ مسرور یا پھر کلیم الدین احمد؟ جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی، ٹھیک ہے، یہ قول جو ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے۔ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح سے اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا افسانوی مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ گرہن، کوکھ جلی، دو ہاتھ یا پھر دانا و دام؟ یہ تو سوال نمبر 85 کا صحیح جواب ہو جائے گا دو ہاتھ۔ دو ہاتھ کیا ہے تو یاد رکھیے گا افسانوی مجموعہ ہے، کن کا ہے؟
تو عصمت چغتائی کا ہے، ٹھیک ہے، دو ہاتھ عصمت چغتائی کا جو ہے افسانوی مجموعہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ تو شام، حالی، شبلی، کلیم الدین۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہ خیال جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں لسانیات کی صحیح ترتیب کون سی ہے؟ زبان کے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں، زبان کے صوری اور معنوی پہلوؤں کے سائنسی اور مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں، زبان کے معنوی پہلوؤں کے سائنسی مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں، یا پھر زبان کے صوری پہلوؤں کے سائنسی مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ جو تو سوال نمبر 87 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں بی، زبان کے صوری اور معنوی پہلوؤں کے سائنسی مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زبان کے صوری اور معنوی پہلوؤں کے سائنسی مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دیا جلے ساری رات کس کا افسانوی مجموعہ؟ خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر یا پھر عصمت چغتائی؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ احمد عباس، ٹھیک ہے، خواجہ احمد عباس کا یہ افسانوی مجموعہ ہے دیا جلے ساری رات۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں دوستو تو یاد رکھیں خواجہ احمد عباس کی پیدائش جو ہے جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا خواجہ احمد عباس کی وفات جو ہے 1987 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس کی وفات جو ہے 1987 عیسوی کو جو ہے کہاں ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا ممبئی میں۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہے جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اس میں کتنے افسانے شامل ہیں تو یاد رکھیے گا 10 افسانے شامل ہیں۔ عصمت چغتائی کی پیدائش کب ہوئی دوستو تو یاد رکھیے گا عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915 عیسوی کو، اگست 1915 عیسوی کو جو ہے عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی ہے تو بدایوں میں، اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ممبئی میں، ٹھیک ہے۔ عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ کون سا ہے تو یاد رکھیے گا چوٹے کی سنِ اشاعت کیا ہے تو 1942 ہے، ٹھیک ہے۔ 1942 جو ہے ایک لڑکی کا بھی ہے، اور چوٹے میں جو ہے 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامے شامل ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پورن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ ٹیڑھی لکیر، ضدی، معصومہ یا پھر ایک قطرہ خون؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ضدی، ٹھیک ہے۔ پورن جو ہے عصمت چغتائی کا ناول ضدی کا کردار ہے۔ اگلا سوال ہے فسادی اور پردے کے پیچھے کس کے افسانے ہیں؟ خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، عصمت چغتائی یا پھر قرۃ العین حیدر؟ جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا عصمت چغتائی۔ فسادی اور پردے کے پیچھے یہ افسانے جو ہیں عصمت چغتائی کے ہیں، یاد رکھیے گا فسادی اور پردے کے پیچھے یہ افسانے جو ہیں عصمت چغتائی کے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم دل افروز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نظم دل افروز کس کا شعری مجموعہ؟ مولانا الطاف حسین حالی، محسن کاکوروی، چکبست یا پھر اسماعیل میرٹھی؟ جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا محسن کاکوروی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، نظم دل افروز جو ہے کن کا ہے تو یاد رکھیے گا محسن کاکوروی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 92 ہے کیا فراق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو؟ کیا فراق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو؟ کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو؟ کس کی غزل کا مطلب ہے یہ؟ فیض، فراق، درد یا پھر میر تقی میر؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ میر درد، ٹھیک ہے۔ کیا فراق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو؟ یہ شعر جو ہے یہ غزل کا مطلب جو ہے خواجہ میر درد کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ 10واں پل، پورے چاند کی رات، بالکونی یا پھر جیلا وطن؟
جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا جیلا وطن، ٹھیک ہے۔ جیلا وطن کن کا ہے تو یاد رکھیے گا قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے جیلا وطن، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سا افسانہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے؟ ایک لڑکے، سردار جی، انتقام یا پھر ٹیڑھی لکیر؟ جی ساتھی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر جو ہے عصمت چغتائی کا داخل نصاب ناول ہے، ٹھیک ہے۔ 3/43/1945 یہ منتر یاد رکھیے گا، 3/43/1945، 3 منزلیں 43 باب اور شائع 1945۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا پاتا؟ یہ کس کا شعر ہے؟ غالب، سودا، میر یا پھر مومن؟ یہ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ کس کا شعر کا مصرع ہے؟ میر انیس، مرزا دبیر، میر اثر یا پھر میر تقی میر؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میر انیس، ٹھیک ہے۔ اور میر انیس اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ جو ہے میر انیس کا مصرع۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ حسرت، جوش، آتش یا پھر فانی بدایونی؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آتش، ٹھیک ہے۔ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے؟ یہ شعر جو ہے آتش لکھنوی کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ افسانہ جیلا وطن قرۃ العین حیدر کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز یا پھر روشنی کی رفتار؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پتجھڑ کی آواز۔ افسانہ جیلا وطن جو ہے قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ پتجھڑ کی آواز میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے نکات الشعراء کے مرتب ان میں سے کون ہیں؟ نکات الشعراء کے مرتب ان میں سے کون ہیں؟ جی تو یاد رکھیے گا اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈاکٹر محمود الہی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نکات الشعراء کو حبیب الرحمن خان شیروانی نے مرتب کیا تھا، اس کے بعد مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے۔ اور نکات الشعراء کو مرتب جو ہے ڈاکٹر محمود الہی نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکات الشعراء میر تقی میر کا تذکرہ ہے اور ڈاکٹر محمود الہی نے جو ہے اسے مرتب کیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ کس نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ضروری بتایا جتنی کہ سانس؟ میتھیو آرنلڈ، جانسن، ٹی ایس ایلیٹ یا پھر افلاطون؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو ٹی ایس ایلیٹ، ٹھیک ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ضروری بتایا جتنی کہ سانس۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔